Hello students, so now we will do kinetic gas equation. So before this video you have to watch the previous one. So we just saw the equation. What is that? PV is equal to 1 by 3 mn mu RMS square. So this is the kinetic gas equation, where P, you know, it will be the pressure, V will be the volume, right? And what is M? M will be the mass of one molecule of gas. And what is N here? N is the number of molecules, right? So, and what is URMS? It is root mean square velocity of molecules. So these are the given values in the kinetic gas equation. So here URMS square denotes it is equal to mu1 square plus mu2 square plus it is up to n value, so can write mu n square divided by V right, divided by V. I hope this equation is clear to you. So second equation which we will study about kinetic energy of n moles of gas. If we talk about kinetic energy of n moles of gas, so what is that? That is equal to n into 3 by 2 RT. So this will be the second equation, right? So let us talk about the first equation, how we can derive this first equation. So let us suppose we have a container. अगर हम मान के चलते हैं, अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, एंड हैविंग गैस इन इट. सो ठीक है, अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो no doubt it having n number of molecules with it, right? But we are just talking about one molecule. ठीक है, कोई एक molecule पड़ा हुआ है. So these are the walls of the container, or it consists some mass that will be m. एक molecule की बात करेंगे तो molecule है, उसका कोई ना कोई mass होगा, ठीक है. So this will be the distance of the container. Okay, so this is the wall. तो इस wall पे ही जो ये molecule है, it will hit. When it will move, it will hit or it will collide with the wall of the container. ठीक है, तो जब ये hit करेगा तो it will move in different directions. You can say here it is along the x-axis, it is along the y-axis and it is along the z-axis. तो जो इसकी स्पीड होगी तीनों एक्सिस के अलोंग, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. वी आर सेइंग y1 और z1 और x1 बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली वन मॉलिक्यूल, सो इट विल बी u1, राइट. तो स्पीड जो उस मॉलिक्यूल्स की है वो क्या हो जाएगी? दैट विल बी u1. ठीक है, अब जो भी ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमने पढ़ा है कि जो इसका मास है वो कितना है? m. वी हैव कंसीडर दैट मास ऑफ दिस, इसका मास m है, ठीक है. तो जो इसकी स्पीड है, जब भी ये वॉल से टकराएगा तो जो इसकी स्पीड है वो क्या होगी? ux1, ठीक है. जब भी ये वॉल से क्या करेगा? कोलिजन करेगा. उसके बाद जैसे इसने कोलिजन हुआ उसके बाद ये क्या करेगा? अपनी डायरेक्शन चेंज हुई इसकी,
तो यहाँ पे जो मोमेंटम है, यहाँ पे भी कुछ इसका मोमेंटम शो करेगा ये, ठीक है, अलोंग विद इट्स मास। तो जो इसका मोमेंटम होगा दैट विल ux1, राइट। सो अगर हम इसका मोमेंटम निकालें इस मॉलिक्यूल का, सो जो इनिशियल मोमेंटम होगा, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो जो मास है उसका, उस पे जो मास है इनिशियल, अगर मोमेंटम की हम बात करें तो दैट विल बी सेम, राइट, बिकॉज इट इज गोइंग दिस साइड, सो m ux1, ठीक है। अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें तो बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, राइट, डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है, सो इट विल बी नेगेटिव माइनस mu x1, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल मोमेंटम, ठीक है, फाइनल मोमेंटम को हम डेल पी से डिनोट करेंगे, तो इट विल बी somehow add or it will give us 2m ux1. I hope this is clear. So this is our final momentum, ठीक है। So if we find out the force exerted on the wall of the container, right, if we talk about force exerted on the wall of the container, so that will be total momentum divided by total time, right. So that will be total momentum divided by total time. So what will be the time if we are talk about, because we have already discussed about the momentum, अगर टाइम के बारे में बात करें, ठीक है। सो दैट विल बी डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड एक साइड की डिस्टेंस कितनी है, l हमने मान के चले हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में l डिस्टेंस कवर किया, तो वापस आने में भी l डिस्टेंस कवर होगा, तो जो डिस्टेंस हो गया उसका वो कितना हो गया 2l, right, distance will be 2l. so what will be the speed कितना है mu xi, और वापस जाते भी, so that will be mu xi, right. So what we have to find out, we have to find out force exerted on the wall. So you have to put all these values of time or momentum in this. So what we can write, we can write force is equal to del p divided by del t. So you have to put the values mu xi divided by 2l mu xi. So this is the value which we have to put, right. So after solving this, what do we get, this will be upper side, or we will cancel 2 by 2, so m divided by l, so it will be upper side, so it will, we can write mu xy mu x1 square, right. So this value we have got it from here, or the force exerted on the wall. I hope this is clear. So अब हमें एक चीज हमने पीछे पढ़ा था, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 म्यू एक्स स्क्वायर, राइट। जो म्यू स्क्वायर है उसकी वैल्यू 3 म्यू एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वट वी कैन राइट दैट फोर्स इज इक्वल टू m अपॉन l. सो इन दिस टर्म वी कैन राइट 1/3 म्यू 1 स्क्वायर, राइट। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी अस, दिस इज द फोर्स ऑफ 1 molecule ऑफ द गैस एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो 1 मॉलिक्यूल का फोर्स हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। ये 1 मॉलिक्यूल का फोर्स हमने वैल्यू निकाल लिया। अगर हम n मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो n मॉलिक्यूल्स, अगर हम n मॉलिक्यूल्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/3 ml u1 स्क्वायर प्लस 1/3 ml mu2 स्क्वायर अप टू n तक हम बात कर रहे हैं, तो इट विल बी 1/3 m/l प्लस, सॉरी नोट द प्लस, mu n स्क्वायर. सो दिस विल बी आवर वैल्यू, ठीक है।
फोर्स ऑफ n मॉलिक्यूल्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम जो हमारी टर्म है, अगर हम इस टर्म को m/l, अगर इन सभी में m/l है, ठीक है, इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, μ1² प्लस μ2² μn², राइट, लिख सकते हैं इसको ऐसा। अगर हम इस पूरी को n से डिवाइड कर दें और n से मल्टीप्लाई कर दें, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन इट, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यू हैव टू जस्ट रिकॉल दिस वैल्यू। व्हाट इज दैट, ये वैल्यू क्या थी हमारे पास, μRMS जो हमने निकाला था, दैट इज यू कैन से μRMS का स्क्वायर आप बोल सकते हो, μ1² प्लस μ2² प्लस μn² डिवाइडेड बाय n। ठीक है, जो ये वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू μRMS², सो वी विल पुट μRMS² इन प्लेस ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ से नेट फोर्स है वो क्या आ जाएगा, 1/3 ml। ठीक है, इनको आगे ले आते हैं, इंटू n μRMS²। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस विल बी आवर नेट फोर्स। अगर हम प्रेशर की बात करें, टू टॉक अबाउट प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, सो फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/3 mn डिवाइडेड बाय l μRMS²। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर फोर्स। अगर एरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, सो सी इट, सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस, L3, right? So this is our volume. So what we can write about the area here, if we talk about the area, so it will be L², right? It will be L². So if we combine both these, so it will L3, right? So what we can write, pressure is equal to 1/3 mn L3 μRMS², राइट। सो P इज इक्वल टू 1/3, और इसी अभी मैंने बताया आपको L3 को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, राइट। सो दिस इज द वॉल्यूम विच इज गिवन, सो mn μRMS² डिवाइडेड बाय V। ठीक है, अब इस V को हम इधर ले आए तो PV इज इक्वल टू 1/3 mn μRMS²। So see, this is the same value which we have just taken from the starting। ठीक है, ये हमें नहीं डिराइव करना था, so this value we have just derived, you can see। I hope this is clear, this derivation is clear to you।